definitely that is the motive. So I just started the recording. Hey everyone, Hare Krishna. Welcome to the recorded lecture of daily reading session. Here we have 12 devotees with us who are attending and giving their precious time to this precious knowledge of spirituality of Krishna. And you all are welcome. Thank you so much for attending, to all those who are here and to all those who are watching right now. Okay, एवरीडे होंगे। हाँ, डेफिनेटली एवरीडे होंगे। और वन मोर थिंग इज कि फ्रॉम दिस डिवाइन कॉन्वर्जेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद with this personality whose name is Bob, we are getting so much insights about Krishna, about how we should act in our daily life, because those questions are very common. And the second lecture is about the Grihastha ashram. So you all can watch the recorded lecture. Thank you so much, Avirup. Hare Krishna. And you all can watch the recorded lecture of the second reading session. Today is the fourth day of reading session. Yesterday we didn't had the reading session because हमने सुबह भगवत गीता पढ़ी थी. Also, one more important announcement for you all, that भगवत गीता को complete करने में हमें थोड़ा time लगेगा, because we are having only one class of Bhagavad Gita in a week, and also we are reading it very slowly, in a very slow pace, so that we can understand the depth of every shlok. Okay, without wasting any time, let's start, and also with the prayers. Just a second. Hey Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये जो प्रेयर्स है हमारी, प्रणाम मंत्र है, इनको मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, अनाउंसमेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि सब उसमें हैं. ओके. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः. नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. Okay, now let's start reading the fourth lecture. Fourth chapter. Also, this is the fourth reading session. Okay, the three modes of nature. हम सब अवेयर हैं नेचर के तीन मोड्स होते हैं ना, गुडनेस एंड विच आर गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. पैशन का मतलब है रजोगुण, गुडनेस का मतलब है सतोगुण, और इग्नोरेंस का मतलब है तमोगुण. आपने ये सुने होंगे काफ़ी सारी रील्स में या फिर किसी और लेक्चर्स में. तो यहाँ से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे द थ्री मोड्स ऑफ नेचर. बॉब, I have read that in life there are three gunas: passion, ignorance, and goodness. I was wishing that you would explain this somewhat, especially what is meant by the mode of ignorance and the mode of goodness. In goodness, you can understand things, knowledge, you can know there is God, that this world was created by Him, and so many things, actual things. The sun is this, the moon is this, perfect knowledge. If one has some knowledge, even though it may not be perfect, that is goodness. And in passion, one identifies with his material body and tries to gratify his senses. That is passion. And ignorance is animal life. In ignorance, one does not know what is God,
how to become happy, why we are in this world. For example, if you take an animal to the slaughterhouse, it will go willingly. This is ignorance. But a man will protest. If a goat is to be killed after 5 minutes, but you give it a morsel of grass, it is happy because it is eating. That is ignorance. तो प्रभुपाद बता रहे हैं सारे नेचर्स के बारे में, सारे मोड्स के बारे में. गुडनेस, सत्वगुण का मतलब है कि यू आर इन नॉलेज, आपको पता है, कुछ कुछ नॉलेज है आपको, दैट इज़ ऑल्सो सत्वगुण, दैट इज़ ऑल्सो गुडनेस. एंड अगर आप अपने आप को ग्रेटिफाई करना चाहते हो दुनिया भर की चीज़ों से, तो उसको पैशन कहते हैं. और अगर आप इग्नोरेंस में जी रहे हो, इट मीन्स यू हैव नो नॉलेज, यू हैव नो पैशन, यू आर इनटू द जोन ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर आप एनिमल लाइफ जी रहे हो, सिंपली वही चार चीज़ें कर रहे हो जो एनिमल्स करते हैं, विच आर स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. Being in these modes determines your karma. Is that correct? Yes. ये चैप्टर खत्म होते ही, छोटा सा चैप्टर है, ये चैप्टर ख़त्म होते ही अपना सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ा सा चिट चैट कर लेंगे, आपके साथ बातें कर लेंगे. एंड इफ़ समवन वांट्स टू रीड, आई विल इन बिटवीन आई विल आस्क इफ़ समवन वांट्स टू रीड, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू रीडिंग. Yes, according to the association of the modes of nature, your activities are being contaminated. Karanam guna sango saya sat asad yoni janmasu. A man gets a higher birth or lower birth according to the association of the gunas or the mode of nature. Okay, तो हम जिस मोड के अकॉर्डिंग आते हैं, ये गीता के 13th चैप्टर के 22nd श्लोक में लिखा हुआ है इस बारे में कि अ मैन गेट्स हायर बर्थ और लोअर बर्थ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ गुनास और द मोड्स ऑफ नेचर. अगर कोई अपनी पूरी लाइफ मोस्टली इग्नोरेंस में जीता है, इग्नोरेंस में जीने के कारण क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ इज मोस्ट प्रोबेबली इन एनिमल किंगडम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कर्मा यू डिड इन दैट इग्नोरेंस. So, cheating and things like that, what mode is that? Cheating is mixed, passion and ignorance. Perfect questions, perfect answers. So, cheating and things like that, what mode is that? तो बॉब कह रहे हैं कि चीटिंग करना वो कौन से मोड में आता है. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चीटिंग इज़ मिक्स्ड पैशन एंड इग्नोरेंस. वो पैशन और इग्नोरेंस दोनों के अंदर आता है. Suppose one man cheats another. That means he wants to obtain something. बहुत परफेक्ट बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि अगर कोई इंसान किसी को चीट करता है तो उसका रीज़न क्या होता है. That means he wants to obtain something. He is passionate, but if he commits murder, he does not know that he will have to suffer for it. So it is a mixture of passion and ignorance. That person don't have knowledge. At the same time, without having the knowledge, the person is doing so and so things which are bad, which are sinful. So that comes in both ignorance and passion. And what about when somebody helps another person? That is goodness. Why is that goodness? You said that goodness is when you have knowledge. So helping someone represent knowledge of what? If he is ignorant and you are trying to enlighten him, that is goodness. So giving knowledge is goodness? Yes. And what about just giving assistance? That is also goodness. If a beggar has nothing and you give him alms, that may still be goodness, but in your uh, Bovary Street, they give someone charity and immediately he purchases a bottle of wine and drinks and lies down flat. So that is charity, but that is not goodness, that is ignorance. So if we are
गिविंग मनी टू समवन, अगर हम चैरिटी कर रहे हैं, पैसे कहीं दे रहे हैं किसी को, गरीब व्यक्ति को, लेकिन वो गरीब व्यक्ति क्या करता है, उससे अल्कोहल खरीद के पी लेता है, तो दैट इज इग्नोरेंस। वो गुडनेस हो सकती है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आपके पैसे किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है, गुडनेस प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है। चैरिटी कैन बी इग्नोरेंस। देर आर 3 काइंड ऑफ चैरिटीज़। तो 3 तरह की चैरिटीज़ भी होती है जो प्रभुपाद बता रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। इन गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, तीनों मोड्स में आप चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी इन गुडनेस मीन्स गिविंग चैरिटी वेयर चैरिटी मस्ट बी गिवन। सपोज कि एक एक व्यक्ति आपके पास आते हैं, वो आपको कुछ और कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ हो गया है, आप हमें पैसे दे दीजिए, हमें हेल्प की ज़रूरत है। एंड वॉट दे आर डूइंग विद योर मनी इज़ दे आर गोइंग टू अ पब और अ रेस्टोरेंट एंड दे आर एन्जॉइंग देयर। तो आपकी चैरिटी, जो पर्पस से आपने चैरिटी की थी, वो पर्पस फेल हो गए। चैरिटी इन गुडनेस मीन्स गिविंग चैरिटी वेयर चैरिटी मस्ट बी गिवन, just like the Krishna consciousness movement. If anyone give charity to this movement, that is charity in goodness, because it is spreading God's consciousness, Krishna's consciousness. That is charity in goodness. And if one gives charity for some return, that charity is passion. Now आप जानते हैं कि कई सारे लोग क्या करते हैं, पैसे तो देते हैं, या हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इस यहाँ पे हमारा नाम लिखो कि हमने इतने पैसे दिए हैं, शोकेस करो तुम्हारे हॉस्पिटल में, हमारा नाम दीवारों पे लिखो, हमारी फ़ोटो लगाओ, हमारी पूजा करो, आरती करो हमारी। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, दे नीड फेम, दे नीड कि लोग हमें जाने, लोग मेरा नाम जाने, मेरी वाहवाही करें कि वाह ये तो बड़ा दानी है। तो दैट इज़ पैशन, बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। And if somebody gives charity at an improper place and time without respect and to an unworthy person, just like the Bovary men, that is charity in ignorance. तो अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं विदाउट नोइंग कि व्यक्ति उन पैसों का क्या करेगा, तो दैट कम्स अंडर इग्नोरेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी इंटेंशन तो अच्छी है, कि हम तो चाहते हैं कि हमारे पैसों से खाना लेके खाए, अपना पेट भरे, लेकिन अगर वो उससे कुछ गलत करे तो यू डोंट नो। तो व्हाट इज़ बेटर कि आप, अगर लोग चैरिटी करते भी है ना, इफ़ एनी वन ऑफ यू डू चैरिटी, मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर सकते हैं जो कि वेरीफाइड हो, जो कि एक्चुअल में लोगों की हेल्प करती है, एंड इन रिटर्न डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एंड इन प्लेस ऑफ एक्सपेक्टिंग आप क्या कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि मैं इनको पैसे दे रहा हूँ और सबके अंदर भगवान है, तो एक तरीके से भगवान की सेवा है ना। भगवान को मन में रखते हुए अगर हम सेवा करेंगे ना, जैसे अगर आप किसी जानवर को भी कुछ खिलाते हैं और मन में सोचते हैं कि इसके अंदर भी भगवान है, तो वो भगवान की सेवा हो जाती है। वहाँ पर आपकी इंटेंशन और आपका मन बहुत मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो। बट कृष्णा सेज यत करोसी यद असन असंसी यज जोहोसी ददासी यत। वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे, एंड वॉट एवर austerities you perform, do that as an offering to me. As I said, गीता 9th chapter 27 श्लोक में लिखा है, you are doing anything, just remember me. Do that while remembering me, such that you are offering me. If Krishna takes your offering, that is the perfection of charity. Or anyone who is the representative of Krishna, if he takes it, that is perfection. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा मीन्स गुरु। जो गुरु होते हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर आप गुरु को डोनेट करते हैं, लाइक इफ़ यू आर गिविंग गुरु दक्षिणा, तो दैट कम्स अंडर गुडनेस। और अगर आप कोई भी XYZ डोनेशन या चैरिटी करते हैं और आप भगवान को याद करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट मेक श्योर टू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सम चैरिटी, क्योंकि बहुत फ्रॉड, बहुत स्कैम्स हैं इस दुनिया में। दैट इज़
some advice from my personal experience. And what kind of charity is that? When you give food to somebody who is hungry? Well, that depends on the circumstances. For example, if a doctor has forbidden his patient to take any solid food, and if the patient is asking, give me some solids, and if you give him solid food in charity, then you are not doing good to him. That is ignorance. Are the devotees beyond accumulating karma? These devotees, do they feel karma? Do they work in these modes? Are they in the modes of goodness? नाउ अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना, ये बुक हमें एक ऐसी चीज़ बताने वाली है जो आपको लगेगा, ओ वाओ, भगवान आप कितने अमेजिंग हो, आप कितने कितने ज़्यादा अमेजिंग हो। मतलब हमारे लिए आपने कितना सिंपल कर दिया सब कुछ। तो पहले तो बॉब पूछते हैं कि क्या हम किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं तो वो गुडनेस के अंदर आएगा? तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति, सपोज कि डॉक्टर ने उसको कुछ सॉलिड खाने से मना करा, आपने उसको सॉलिड खिला दिया, तो दैट कैन ऑल्सो बी इग्नोरेंस। और अगर आपने किसी को सिंपली खाना खिलाया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग बैक एनीथिंग, सो दैट कम्स अंडर गुडनेस। और अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो और सोच रहे हो बदले में थैंक यू बोले, अरे वाह मालिक आप बहुत अच्छे हो, तो आप अपनी वाहवाही करवा रहे हो, दैट इज पैशन। दे आर ऑल्सो गुड, अबव गुडनेस। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जो भी करते हैं, वो सतो गुण से भी ऊपर होता है, वो और ऊपर होता है। वो क्या होता है? शुद्ध सत्व। द डिवोटीज आर नॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट इज स्टेटेड इन भगवद गीता 14 चैप्टर 26 श्लोक। मम च यो व्यभिचरेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान यतिन येतन ब्रह्म भूयाय kalpate. One who engage in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the mode of material nature and thus come to the level of Brahman. Devotees are neither in goodness, passion nor ignorance. They are transcendental to all these qualities. तो जो भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं और हर अपने मटेरियल एक्टिविटीज़ में भगवान को याद रखते हैं, तो वो सारे थ्री मोड्स ऑफ नेचर को क्रॉस कर लेते हैं, उनके बियॉन्ड चल जाते हैं। और एक और चीज़, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था भगवद गीता के, जो हमने जो वर्सेस पढ़े थे 42 से लेके 50 तक, उसमें हमने जाना था कि अगर आप अपने कर्मों के फल से बंधते हो, इफ़ यू आर डूइंग योर कर्मा जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ कर्मा, फॉर द फ्रूटिव रिजल्ट्स, तो आप क्या करते हो? आप कर्मों के बंधन में और बंधते हो। इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, इफ इन यू आर डूइंग समथिंग बैड, वो क्या कर रहा है? वो आपके अगले जन्म की तैयारी कर रहा है कि अगले जन्म में आप कैसे होगे, आपको कैसी बॉडी मिलेगी, कैसे परिवार मिलेगा, क्योंकि आप अपने कर्म करते हो तभी तो आपका एक नया आगे की लाइफ सेट होती है। तो अगर हम, तो क्या करें? प्रभु जी बताइए, आप ही बताइए कि क्या करें ऐसा कि ये कर्मों के बंधन में ना फंसे। तो दिस बुक इज़ टेलिंग अस कि आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान को याद करते हुए कर्म करोगे, सारी अपने कर्मों को भगवान को ऑफर कर दोगे, तो फिर आप कर्मों के कार्मिक रिएक्शन से फ्री हो जाओगे। अ डिवोटी हु इज़ वेरी फेथफुल रीचेस दिस स्टेज। Yes, you can become a devotee as they have become. It is not difficult. Simply you have to engage yourself in the transcendental loving service of the Lord. That's all. What is the status of service minus devotion? That is not service, that is business. For example, here in Mayapur, we have employed a contractor. That is not service, that is business. It is not. Sometimes they will advertise our customers are our masters. It is not. But in spite of the flowery language, our customers are our masters. This is business because nobody is a qualified customer unless he pays.
but service is not like that. Chaitanya Mahaprabhu prays to Krishna, yatha tata va vidadhatu lampato mat prana nathastu sa eva na para. You do whatever you like, but still you are my worshipable Lord. That is service. I don't ask any return from you. That is service. When you expect some return, that is business. So, for example, if we are expecting something in return, so then it is business. So, what was the question was कि what is the status of service minus devotion? अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं और आप फिर कुछ कर रहे हैं बिना डिवोशन के, तो वो क्या होता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज बिजनेस बिकॉज यू विल एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, लाइक दैट कैन बी एनीथिंग, not just money, that can be fame, that can be appreciation. So if you're doing something you want appreciation for that, that is business, because you are, what you are doing, you are exchanging appreciation with your what you did. आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको अगर वाहवाही चाहिए तो आप एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए भगवान, बट आप फिर भी मेरे पूजनीय भगवान रहेंगे, मैं फिर भी आपकी पूजा करूँगा. आप, ये एक भक्त की क्वालिटी होती है कि भगवान आप तो मेरे साथ कुछ भी कीजिए, क्योंकि मैं आपका ही हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे. और हम जो वो रिलेशन है अपना और भगवान का, वो तो हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते ना. हम भगवान से एनवियस होके कहाँ ही जाएंगे. ऐसे नहीं होता कि एक बच्चा नाराज़ हो जाता है अब घर छोड़ दूंगा चला जाऊंगा, लेकिन शाम को घर ही आता है खेल के और कहता है मम्मी खाना दे दो. तो हम इस तरह से भगवान पे डिपेंडेंट हैं. आई विश टू गेन मोर नॉलेज ऑफ गॉड एंड बी एबल टू फील गॉड्स प्रेजेंस मोर. आई फील लाइफ हैज़ लिटिल मीनिंग विदाउट दिस. Yes, if you misuse this human form of life, then it is a great loss. Human life is a great chance given to the living entity to get out of the entanglement of material existence. I feel thankful that I have been able to ask these questions. प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें हमारे इस लाइफ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. हम सब ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन लाइफ का एक्चुअल गोल है भगवान को जानना, भगवान को पाना. और ये जो मटेरियल एंटैंगलमेंट है, ये जो भव सागर की बंदिश है, इसको तोड़ के भगवान तक पहुंचना, क्योंकि इस ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है. ह्यूमन लाइफ जो होती है वो कर्म योनि होती है, और जो एनिमल लाइफ होती है वो भोग योनि होती है. तो आप ह्यूमन लाइफ में ही, दैट इज़ द ओनली चांस व्हेन यू कैन लिबरेट योर सेल्फ. आई फील थैंकफुल. बॉब कह रहे हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल, मैं आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछा है. प्रभुपाद कहते हैं येस, यू कैन लर्न मोर एंड मोर. Questions and answers are required. They are beneficial to all. Sutta Goswami says in Srimad Bhagavatam, not reading the verse, O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are relevant to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. So, questions about Krishna are very good. When you discuss and hear about Krishna, that is Lok Mangalam, auspicious for everyone, both the questions and the answers. Now you get it why I ask you guys to ask questions in the end of the lecture. प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर भगवान से संबंधित हो तो वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. उन क्वेश्चन से क्या होगा? लोक मंगलम, सबका भला होगा, उससे सबको भगवान के बारे में जानने को मिलेगा. वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दोनों ही मंगलकारी होते हैं. आई एम अट्रैक्टेड टू डिवोशनल लाइफ बट आई स्टिल हैव मैनी कनेक्शन एट होम. मैरिज इज, आई एम एंगेज्ड. नो, देर आर सो मैनी मैरिजेस. इंडिकेट श्याम सुंदर. श्याम सुंदर कौन है? प्रभुपाद के असिस्टेंट है. प्रभुपाद ऐसे कर रहे हैं
देखो श्याम सुंदर को ही देख लो आप, श्याम सुंदर इज ऑल्सो मैरिड, he is married. Marriage is no barrier. I told you that there are four orders of spiritual life. भगवान ने ही वर्णाश्रम बनाया है, एंड whoever, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, वो भी हमने पढ़ा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, अगर आप भगवान के बनाए वर्णाश्रम को सही तरह से फॉलो करते हो तो आप भगवान की सेवा करते हो, आप भगवान को खुश करते हो। तो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग फोर ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। सो आफ्टर ब्रह्मचारी लाइफ वन कैन मैरी, आफ्टर द एज ऑफ 25 यू कैन मैरी अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम, ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। ये ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको शादी करना ही पड़ेगा। वन कैन रिमेन ब्रह्मचारी अनमैरिड फॉर हिज होल लाइफ, बट अ ब्रह्मचारी में मैरी एंड आफ्टर मैरिज देयर इज वानप्रस्थ लाइफ। तो क्या होता है कि शादी करना और नहीं करना यह आपकी विल है, आप चाहें तो आप आजीवन ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हैं, और अगर आप वैवाहिक जीवन जो गृहस्थ आश्रम है उसमें भी आ सकते हो, आप शादी भी कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड लेक्चर था ना उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, मैं उसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगा। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक डिवोटी शादी करने के बाद कैसी लाइफ जीता है, और दिस मीन्स दैट वन इज अ लिटिल aloof फ्रॉम फैमिली, द हस्बैंड एंड वाइफ लिव्स सेपरेटली, एट दैट टाइम देयर इज नो सेक्स लाइफ, then when he is fully renounced, detached from family life, he takes sannyas। तो वर्णाश्रम कैसे काम करता है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, लेकिन ब्रह्मचर्य में आप बहुत डेडिकेटेडली नॉलेज गैदर करते हो, आप पढ़ते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। एट दैट टाइम यू कंसिडर ऑल द वुमेन्स माता जी ओनली, और आप किसी भी लड़की को इन अ पार्टनर वे नहीं देखते हो, रिलेशनशिप एंड दिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर नहीं उसमें हम फॉलो करते। और उसके बाद मैरिड लाइफ होती है जो गृहस्थ होती है, उसमें आप अपनी वाइफ के साथ बच्चे पैदा करते हो, और जो माता जी हैं वो अपने हस्बैंड के साथ बच्चे पैदा करती हैं। नाउ वो लोग अपने बच्चों को पालते हैं, एंड एट सम सर्टेन एज फिर वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है, जिसमें क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो इनफ कैपेबल होते हैं अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए, इंडिपेंडेंटली अर्न करने के लिए। उस टाइम पे दोनों जो पार्टनर्स होते हैं वो तीर्थ स्थानों का विजिट करते हैं, मतलब टेम्पल्स जाते हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, और ज्योतिर्लिंग देखने जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो वो अच्छी अच्छी सारी सेक्रेट प्लेसेस में जाते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब व्यक्ति अपनी वाइफ को बच्चों के साथ छोड़ के संन्यास ले लेता है, हर चीज़ से संन्यास ले लेता है। एट दैट टाइम देयर इज नो सेक्स लाइफ, then when he is fully renounced, detached from family life, he takes sannyas। So does the sannyasi forget his wife completely then? Yes, forgetting is not very difficult. If you try to forget, out of sight, out of mind, just as I have my wife, children, grandchildren, everything, but out of sight, out of mind, that's all। Therefore vanprasth, sannyas, everything is nicely arranged by the Vedic system। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद आई हैव माई वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, एवरीथिंग, बट आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, दैट्स ऑल। तो अगर आप, क्या होता है इवन इन रिलेशनशिप्स, आजकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, एक लड़का और एक लड़की कुछ टाइम तक कुछ इमोशंस और एक बॉन्ड शेयर करते हैं, देन क्या होता है उनका ब्रेकअप हो जाता है। कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया कि अरे क्या कपड़े पहने, तुम्हें लखन नहीं है कपड़े पहनने के, क्या पहना है ये, मेरे पास यही कपड़े हैं मैं यही पहनूंगा, और कुछ लड़ाई हो गई, आज जाओ ब्रेकअप, ब्रेकअप ख़त्म, सब ख़त्म। तो वो भी एक दूसरे को भूल जाते हैं, भले कितना भी लंबा वो रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप के बाद वो लोग मूव ऑन कर लेते हैं। तो संन्यास का मतलब है कि आप अपने जो वर्ल्डली रिलेशंस हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, उनको छोड़ के केवल भगवान से ही
अपना रिलेशन को रीस्टैब्लिश करने में लग जाओ फाइनली. एंड संन्यास इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस वर्णाश्रम. डन विद द चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. अब हम डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर. आपको 3 मोड्स ऑफ नेचर से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो या इस बुक के किसी पार्ट पे जाना हो, आई कैन प्रेजेंट अगेन. प्रभु जी, आप थोड़ा वो पैशन और वो गुडनेस, वो तीनों चीज थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा ब्रीफली? हाँ, डेफिनेटली. देखो, पैशन तो पहले गुडनेस से हम स्टार्ट करते हैं. इसको हम ऐसे समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. गुडनेस का मतलब है यू आर इन नॉलेज. ओके. और पैशन का मतलब है यू हैव लिमिटेड नॉलेज. तो आप क्या करते हैं, आपको जो दिख रहा है अपने सराउंडिंग में, जैसे आपको कोई फ़ोन दिख रहा है, आपको ऑनलाइन कुछ दिख रहा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि मे बी आई शुड गेट दिस थिंग सो दैट आई कैन बी हैप्पी. मैं खुश हो पाऊँगा, मैं खुशी के लिए यहाँ जा सकता हूँ, मैं इस फ्रेंड को बुला के इस क्लब में जा सकता हूँ. दैट इज़ पैशन. कि अगर आप दुनिया मटेरियल चीज़ों से इन्जॉय कर रहे हो, दैट इज़ पैशन. इग्नोरेंस का मतलब होता है बीइंग इन अ स्टेट वेयर यू हैव नो नॉलेज अबाउट एनीथिंग. आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपके पास पैशन भी नहीं है. और विदाउट नॉलेज क्या होता है कि मोस्टली जितने भी हमारे काम होते हैं ना, वो मिक्स्ड होते हैं. तो गुडनेस का मतलब है यू आर इन कंप्लीट नॉलेज. आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर हम उनको कैटेगराइज करेंगे इन तीनों के अंदर. अगर कोई व्यक्ति इज़ हैविंग illicit सेक्स, तो दैट कम्स अंडर पैशन एंड इग्नोरेंस. दिस इज़ लाइक NCERT एक्टिविटी. NCERT में क्वेश्चंस आते हैं ना, स्कूल लेवल पे जो बुक्स होती हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं कि इनको मैच करो, मैच द फॉलोइंग. तो देखो, illicit sex इज़ व्हाट? अ पर्सनस इंटेंशन मैटर्स हियर. एक व्यक्ति क्या करता है, अगर शादी से पहले वो किसी के साथ सेक्स करता है, इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू प्लीज हिमसेल्फ. वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहता है. तो हियर कम्स पैशन. ऑल्सो ही डजेंट नो दैट दिस इज अ सिंफुल एक्टिविटी. तो हियर कम्स इग्नोरेंस. और गुडनेस इज क्या, वॉट? एक व्यक्ति है जिसको पता है illicit sex is sinful, it is bad, that is soul deceiving. तो वो क्या करेगा? नहीं, I don't want to do this. तो that is goodness. If a person have knowledge, अगर हमें बचपन से कई सारी नॉलेज दी जाती है कि आपको तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, तुलसी को संडे को पानी नहीं देना चाहिए, इस नॉलेज में अगर आप कोई काम करते हो तो दैट इज़ गुडनेस. अगर आप इम्परफेक्ट नॉलेज में मटेरियल चीज़ों से हैप्पीनेस डिराइव करना चाहते हो, दैट इज़ पैशन. एंड अगर आप कुछ सिंफुल एक्टिविटी करते हो, दैट इज़ इग्नोरेंस. सिंपली सिंफुल एक्टिविटीज़ आर इग्नोरेंस, क्योंकि सिंफुल एक्टिविटीज़ तभी होती है व्हेन यू आर नॉट इन नॉलेज. अगर हम किसी को बता देंगे तुम्हें पता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये करने से पता है क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा पता है क्या होता है, ये करने से तुम्हें ये ऐसा मिलेगा और जो कर्मों का बूमर आएंगे वो तुम्हारे पास ऐसे आएगा. तो वो पर्सन मे बी समझ जाएगा तो गुडनेस की तरफ आ जाएगा. समझ गए आप? जी प्रभु जी, समझ गए मैं. मे बी इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. वैसे ये चैप्टर बहुत बहुत छोटा है और इसके अंदर बहुत एलैबोरेट करके चीज़ें बहुत परफेक्टली बताई हुई है. ओके, तो एनी अदर क्वेश्चन? वैसे बहुत अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इससे सबको ओवरऑल और पता चला इस बारे में. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ, हरे कृष्णा, बताओ. हरे कृष्णा. ये वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ
स्पिरिचुअल लाइफ्स है ना, जैसे कि हम लीड कर सकते हैं, पहले ब्रह्मचारी फिर गृहस्था ऐसे। तो ये जो भी स्टेजेस है लाइफ लाइफ के जो हम चॉइस करेंगे, तो हम्म। ये क्या एक वुमेन भी कर सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसमें कैसे करना है जी। मैं बताता हूँ थोड़ा। कि जो ब्रह्मचर्य है उसमें सिंपली हम्म। जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनके लिए सेम ही रूल्स अप्लाई होते हैं। आप भी सारी नॉलेज गैदर कर सकते हो ब्रह्मचर्य में रहते हुए। रिलेशनशिप इज एक्चुअली नॉट अलाउड। हैविंग अ पार्टनर इज नॉट अलाउड इन ब्रह्मचर्य। क्योंकि पार्टनर होने का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ इट आप चाहते हो किसी भी पार्टनर से, हम चाहते हैं कंपेनियनशिप। और कंपेनियनशिप के साथ क्या होता है, थोड़ी अटैचमेंट्स हो जाते हैं हमें किसी भी इंसान से। तो दैट इज़ नॉट गुड इन ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ में जब शादी हो जाती है तो गृहस्थ स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ सेम फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो फिर गृहस्थ में रहते हुए आप क्या कर सकते हो, आप वही सेम रूल्स फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताए। तो इफ़ यू वॉच द सेकेंड लेक्चर ना, सेकेंड रीडिंग सेशन जो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड ही हो रहा है, वो अभी अपलोड हो ही रहा है। हाँ, हो चुका है वो अपलोड, बस मेरे को जी पब्लिश प्रभु करना जी। है ना। तो अभी मैं उसको पब्लिश कर दूंगा आफ्टर दिस रीडिंग सेशन। उसमें ये बताया गया है कि अब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है ना, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, आई शुड नॉट बी द वन हु शुड डिस्कस दिस विद यू। मोस्टली ऐसा होना चाहिए कि लड़कों को लड़के बताएं इस बारे में और माता जी को बताएं। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है कि बहुत परवर्टेड वे में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को देखते हैं। लेकिन भगवान ने जो क्रिएशन बनाई है दैट इज़ वेरी प्योर। बहुत ही प्योर पर्पस के साथ बनाया है उसको। लेकिन व्हाट पीपल आर डूइंग, एक सेपरेट इंडस्ट्री बना दिया है पूरा, दैट इज़ pornographic कंटेंट। एंड मोस्ट ऑफ द youth, like many people from India are watching porn। ऐसा ऐसा मतलब रिपोर्ट्स में स्टैट्स में आया है कि जो इंडियन वो है ना ट्रैफिक इंटरनेट पे, वो मोस्टली पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी सैड। और उसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पीपल आर ट्राइंग टू डराइव प्लेजर आउट ऑफ इट। हम जो भी काम करते हैं हम उसमें क्या ढूंढते हैं, कुछ मेलो ढूंढते हैं, कुछ प्लेजर ढूंढते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैनी बुक्स एंड by personal experiences, sex is the topmost pleasure in this material world। तो आफ्टर शादी क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेक्स को किस नज़र से देख रहे हैं। इज इट अ एक्टिविटी टू फील प्लेजर ओनली और समथिंग एल्स? उसका रीज़न है कि हम रिप्रोड्यूस कर सकें। तो दैट शुड बी लिमिटेड टू दैट ओनली। सेक्स शुड बी लिमिटेड टू दैट ओनली। तो आपका गृहस्थ आश्रम बहुत परफेक्ट है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, रिचुअलिस्टिक वे में आपको पता चलता है कि पति पत्नी के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं साथ में, कि उन्हें बच्चों को बड़ा करना होता है। तो वो गृहस्थ आश्रम हो गया। अब बच्चे अगर कैपेबल हैं, अपनी करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो जो पार्टनर्स हैं शादीशुदा दंपति, वो घूमने जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाके मंदिर विजिट कर सकते हैं। और फिर वो उनका वानप्रस्थ आश्रम होता है। और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो विमेन है उनको घर ही वापस आना होगा अपने बच्चों की देख रेख में। वहाँ रह करके वो संन्यास ले सकती है। लेकिन
अब विमेन जो है उनके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कहीं अकेले निकल जाए संन्यास लेने के लिए, बाहर की दुनिया में कहीं जाके रहे, क्योंकि जो विमेन होती है उनको चाहिए सुपरविजन, किसी का, बच्चों का या हस्बैंड का। तो इस तरीके से बाकी एग्जैक्टली सेम है ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत सीनियर वैष्णव डिस्कस करते हैं, वो जो बहुत सीनियर वैष्णव प्रीच करते हैं। आई एम नॉट अ सीनियर वैष्णव, मतलब आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज सीनियर, क्योंकि हम ये खुद सुनते हैं मंदिर में प्रभु जी से, ब्रह्मचारी से, जो ब्रह्मचारी हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है, तो वही मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वर्णाश्रम फॉलो होता है। हालांकि अब वर्णाश्रम फॉलो नहीं हो पाता है इस करंटली। कौन वर्णाश्रम फॉलो कर रहा है? आप देखिए, जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो सब घर पे ही रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और सब कोई एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो अटैचमेंट होता है फैमिली के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात, हरि का नाम सबसे परफेक्ट। हरि का नाम जप करते करते हम वहाँ रहते हुए भी हम डिटैच्ड हो जाते हैं थोड़ा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि आप फिर परफेक्टली जो आप पढ़ोगे ना भगवत गीता में, वो आपके लिए परफेक्ट सेंस बनाएगा कि अच्छा हाँ, ये तो मैं फील करने लग गई हूँ या करने लग गया हूँ। आपको समझ आ गए? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। है ना? अगर मेरी कोई बात बहुत गलत लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं ओके प्रभु जी, आप वेरी रेस्पेक्टफुली अच्छे से डील करते हुए आपने बताया। ओके, थैंक गॉड, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस स्ट्रेंथ, क्योंकि ये टॉपिक मेरे को भी डिस्कस थोड़ा मुश्किल ही लगता है करना। ओके, नाउ एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण हमारे जीवन में मतलब डेली लाइफ में वो क्या आते हैं डेली करके? डेफिनेटली, डेफिनेटली आता है। आप देखिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आपने वो खाना भगवान को ऑफर नहीं करा, हम्म, तो वो रजोगुण में आ हम्म, जाएगा। अगर आप सात्विक भोजन भी खाएंगे हम्म, तो भी वो रजोगुण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस हम्म, खाने से आप खुद को प्लीज कर रहे हैं। कितनी सिंपल चीज़ है, आपने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और खाया, आप रजोगुण के अंडर आ गए। लेकिन अब इसका बचाव क्या है? ये तो एक एग्जाम्पल है, अगर हम देखें तो बहुत अनगिनत एग्जाम्पल है कि हम कैसे इन तीन गुणों के अंदर आते हैं। लेकिन अब हम तीनों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? बाय नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नॉलेज होगी तो तमोगुण तो हट ही चुका है, इग्नोरेंस तो हट ही चुका है। उसके बाद पैशन और गुडनेस में भी गुडनेस बेटर है, लेकिन गुडनेस से भी बेटर क्या है? भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा। समझ गए आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समझ गए आप? तो इसी एग्जाम्पल तो को अगर हम ऐसे देखें कि अगर हमने रोटी खाने से पहले पहले भगवान को ऑफर करी, भगवान को भोग लगा दी, जी, तो वो भगवान की सेवा बन गई। अब आप जी, तीनों ही गुणों के अंदर नहीं आ रहे हो, तीनों अच्छा, गुणों से आप अनअफेक्टेड हो। तो अच्छा है ना ये तो बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए ना, हम्म, आप सोचो कि आप कोई भी काम करें तो आप यही सोचो कि ये भगवान की ही सेवा है। क्योंकि मैं मेरी शरीर को मेंटेन करके भगवान की सेवा इस शरीर से कर रहा हूँ, तो सोना भी सेवा बन जाती है। मैंने ये सुना था, मतलब हम डिस्कशन कर रहे थे एक बार मंदिर में, तो प्रभु कह रहे थे कि एक और बुक है, वो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, हर जगह आप कृष्ण को देखो, हर जगह आप कृष्ण को देखो।
अगर आप सो रहे हो, सोना भी सेवा है भगवान की, क्योंकि आप इस शरीर को आराम दे रहे हो, जो शरीर सुबह उठ के भगवान के गुणगान गाने वाला है। तो ताकि वो गुणगान गा सके इसलिए हम सो रहे हैं, जिससे वो शरीर को थोड़ा रेस्ट मिले, जिससे हम भगवान की प्रार्थनाएं, भगवान की आरती और ज़ोर शोर से बहुत खुशी से गा सकें बिना थके। तो इसलिए हम रेस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो सोना है, सोना भी भगवान की सेवा बन जाएगी। तो आप 100% आपके जितने भी कर्म हैं सब सेवा बन जाएगी, और फिर वो कर्म बचेंगी नहीं, वो सेवा बन जाएगी, और आप ऊपर उठ जाओगे तीनों गुणों से, है ना। जी प्रभु। ये बहुत बहुत प्यारा है, ये जो स्थिति है ना, ये स्टेट को पाना बहुत प्यारा है। लेकिन अब ये स्टेट, अगर हम नहीं हैं उस जगह पे, हालांकि मैं भी नहीं हूँ, मेरे को कभी कभी बहुत महसूस होता है ऐसा कि हाँ, हर चीज़ भगवान की सेवा है, हर चीज़ भगवान की सेवा हो रही है अभी। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे को उतना ज़्यादा कनेक्शन ना हो, क्योंकि अभी तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो बहुत कंपटीशन है कि इतना पैकेज होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, अरे इतना पैकेज नहीं है तो क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ। लेकिन इस स्थिति को पाना इतना प्यारा है, और भक्ति में जितनी आगे की स्थिति आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको पाने के लिए केवल जप करना है, केवल जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंत्र है, बहुत बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। तो आप समझ गए ना। तो हमें हम सबको यही कोशिश करनी है कि हम, हमारे अंदर कभी भी अहम ना आए इस चीज़ का कि हम भक्ति में इतने आगे बढ़ गए तो आपकी भक्ति कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत, मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप बता रहा हूँ। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा लोगों के दास बन के रहो, भक्तों के दास बन के रहो। हर भक्त, आप मुझसे ज़्यादा ही हैं भक्त, मैं कोई भक्ति में आगे नहीं हूँ। इससे क्या होगा कि आपके अंदर अहम नहीं आएगा, केवल कहने के लिए नहीं, मानते हुए चलो, तो अंदर ही अंदर आप भक्ति में उन्नति भी करोगे साथ साथ। और एक अहम नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, मैंने इतना नाम जप कर लिया। जैसे ही आपके अंदर वो आ जाएगा ना, घमंड आ जाएगा इस चीज़ का। भक्ति का कभी घमंड नहीं करना। भक्ति का घमंड करते ही आप दोबारा से पैशन के अंदर आ जाओगे। तो हमें चाहिए कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठें, और जितना हो सके गुडनेस के अंदर रहें, सतोगुण में अपने काम करें, और इग्नोरेंस से तो बिल्कुल दूर रहना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। हालांकि हमारे आसपास लोग हो सकते हैं जो हमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल ब्रह्मचर्य का जो नाश हो रहा है ना, ये जो रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है। आई हैव सीन मैनी पीपल अराउंड मी, जो लोग सत्संग में भी इसलिए बैठने आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कौन कौन लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, कौन लड़के बैठे हैं, लड़कियां लड़कों को देख रही है, लड़के लड़कियों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि सारी लड़कियां क्या है, माता जी है। जब हम मंदिर जाते हैं तो सारी लड़कियां माता जी है, जिससे आपके दिमाग में कोई इल थॉट ना आए। और सारी माता जी लड़कों को प्रभु जी कहती है, और प्रभु जी आपस में एक दूसरे को प्रभु जी कहते हैं। और मोस्टली लड़के और लड़कियां इंटरेक्ट नहीं करते हैं इतना, क्योंकि इंट्रैक्शन होते होते, बात होते होते क्या होता है कि हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा अफेक्शन हो जाए, फिर आप रेगुलर बेसिस पे बातें करने लग जाए। आपकी चैंटिंग हुई, आपकी चैंटिंग हुई, ओके ओके, हो गई हो गई। फिर आपने खाना खाया, हाँ खा लिया। आपने खाया, हाँ खा लिया, और बताओ। फिर वो बातें चलते चलते वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा टॉपिक भगवान से, वो थोड़ा पैशन के अंदर, फिर इग्नोरेंस के अंदर भी जा सकता है। तो हमें चाहिए कि भले ही आप माता जी ना बोलें, क्योंकि माता जी बोलना हो सकता है कि लड़कियों को सुनना भी नहीं पसंद होता। तो मन में कोई भी, ब्रह्मचर्य के लिए मैं आपको बता रहा हूँ
कभी आपको लगे ना कि किसी के लिए थोड़ा अफेक्शन आए इन सम अदर वे, कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी है या फिर ये बोलते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में कोई इल थॉट आए। तब आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको लगे ना कि नहीं नहीं यार मेरे दिमाग में आ रहा है कि देर इज़ अ चांस, तो आप तुरंत ही मन में जप करना शुरू कर दिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे भगवान, कहाँ क्यों भेज दी माया, और बचा के रखो माया से। क्योंकि जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना बहुत स्ट्रांग होती है। तो डेली आप भगवान से एक प्रार्थना ज़रूर करा करो अपने शब्दों में, अपने शब्दों में उसको स्ट्रक्चर करके। तो वैसे तो ये डिस्कशन, अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जो प्रार्थना होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। और आप क्या प्रार्थना कर सकते हो कि हे भगवान, मैंने खूब माया का दास बन के देख लिया, मुझे तो कोई खुशी मिली नहीं, और मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे परम पिता हो, मैं आपका ही अंश हूँ। तो मुझे अपने से जोड़े ही रखो, कभी खुद से दूर मत होने दो। ऐसा मत होने दो कि माया मेरी बुद्धि ले जाए और मुझे कोई गलत काम करने पर मजबूर कर दे। और इवन इफ सम डिवोटीज अप्रोचिंग यू ना, कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, साथ में मिलके हम अच्छे से भक्ति करेंगे, प्लीज़ से नो, प्लीज़ से नो। उनको बताइए कि कैसे भक्ति के बीच में आप एक दूसरे की भक्ति के बीच में आ जाएंगे। पता चलेगा कि अभी 16-16 माला जप हो रही है, आने वाले कुछ समय में दोनों की 0-0 माला जप, और दोनों रो रहे हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। ये बहुत होता है, ये मैंने होते हुए देखा है। दैट्स वाई आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू गाइज कि अगर ऐसा है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर टीनेजर्स ही हैं, कॉलेज स्टूडेंट है आई गेस, या फिर जॉब कर रहे हैं, और कुछ कुछ शादीशुदा व्यक्ति भी हैं हमारे साथ। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ टेक अवे है इस लेक्चर में से। तो अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो या चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा मंजुला, आपने हैंड रेस किया है ना? नहीं प्रभु जी, वो बस रेस्पॉन्ड किया है कि आपने कहा है ना कि सारे लोग। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी आपने जो बोला कि ये रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि अगर कोई डिवोटी डिवोटी को अप्रोच करे, हाँ तो उससे मतलब ना, उसे ना बोल देना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर इट माइट क्रिएट एन ऑब्स्टकल इन आवर डिवोशनल पाथ। हाँ बट मुझे और मतलब और अच्छे से जानना है कि हाउ इट कैन क्रिएट, एंड हम लोग अगर नो क्यों बोले कि अगर हम लोग का जो जो अप्रोच कर रहा है या हम किसी को अप्रोच करें, तो क्योंकि हम दोनों उसी कैटेगरी में ही होंगे ओके ओके, जो हम और आई टेल यू, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। क्या होता है कि सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके, क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल तो हमारे पास है। हमारे टेम्पल की मैं आपको बात बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। कि when you are in a relationship ना, always remember that you have to give time to your partner. Definitely आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। नाउ अगर आप नाम जापक है तो 2 घंटे नाम जप करता ही है, हर कोई सिंसियर डिवोटीज 2 घंटे तक नाम जप करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 घंटे अगर आप नाम जप कर रहे हो, और इन केस आपका मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप थोड़ा लेट उठे, आप अपने काम पर गए, वापस आए, आपने काम पर सोचा कि मैं शाम को नाम जप करूँगा। नाउ आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। आपने कहा कि मैंने आज जप नहीं करे, अब मैं जप कर लेता हूँ। हो सकता है कि इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो बोले
आज जब रहने दो, अब मेरे से बात करने का समय है, मेरे से बात करो। देयर इज़ अ चांस। अब क्या होता है कि अगर आप मंदिर गए, तो मंदिर गए, आपको कोई मिला, आपने उनसे कहा कि हाय हेलो, अप्रोच हो गया, फिर उसके बाद रेगुलरली मिलने लग गए, फिर रेगुलरली मंदिर साथ आने लग गए। अब होता क्या है, मैं आपको मंदिर का एग्जांपल बता रहा हूँ। एक प्रभु जी थे, वो बहुत अच्छे से रेगुलरली मंदिर आते थे। फिर उनको एक माता जी मिल गई वहाँ पे, अब वो साथ मंदिर आने लग गए, फिर कुछ टाइम से साथ आए, फिर उन दोनों का ही आना बंद हो गया। पता चला बाद में, वो बहुत बाद में, मतलब रिलेशनशिप सब एंड होने के बाद वो प्रभु के पास आए थे, उन्होंने बताया कि क्या उन्होंने एक्सपीरियंस करा बीइंग इन अ रिलेशनशिप। तो क्या होता है कि यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स। और अब एफर्ट्स फॉर व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। एफर्ट्स टू प्लीज ईच अदर, टू satisfy each other by the presence of each other, that is serving each other. अगर कोई भक्त है, तो हम तो भगवान को सर्व करते हैं, लेकिन सडनली आपके जो भगवान हैं वो कोई और व्यक्ति बन चुके हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम इज कि हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, कि हमें बात करना ज़रूरी है। इफ़ आई विल टेल हर कि मुझे नाम जप करना है, मेरा आज नाम जप नहीं हुआ है, तो वो भी तो डिवोटी हैं, वो समझेगी कि नाम जप कितना इंपॉर्टेंट है और मुझे नाम जप करने देंगी, तो दैट इज़ गुड। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं ना, वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद मटेरियल थिंग्स। क्या होता है कि आप अभी हैं हरे कृष्णा पे, हेलो हाय पे, देन इट विल स्टार्ट विद बेबी आपने खाना खाया, हाँ बेबी खाना खा लिया है। फिर कोई नया निकनेम या कुछ आ जाएगा, वाई, क्योंकि हम बेबी शब्द से बोर हो चुके हैं, अब हमें कुछ नया चाहिए, अब हमें कुछ नया चाहिए, अब हमें कुछ नया चाहिए। तो इस नए के क्रेविंग में इंटेंसिटी ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप विल इंक्रीज, एंड दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप विल रिड्यूस योर भक्ति, क्योंकि कुछ बढ़ रहा है तो कुछ घटेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इतना केयरफुल होके रहना पड़े कि आप किसी के साथ भी हैं, दैट इज़ अ पार्टनर रिलेशनशिप, राइट, कि आप किसी के साथ हैं तो दैट इज़ अ पार्टनर रिलेशनशिप, और उसके अंदर आप पार्टनर वाला कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट हैव सेक्स, यू कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, यू कैन नॉट लिव टुगेदर। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग सच अ लाइफ? आपको बात ही तो करना है, अपने सुख दुख ही तो बांटने हैं। तो सुख दुख बांटो किससे? भगवान से। सुनते सब हैं वो रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन वी आर नॉट इनफ क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। वो क्वालिफिकेशन हमें मिलेगा चैंटिंग से, वो क्वालिफिकेशन मिलेगा हमें नाम जप से। आप समझे कि इंटेंसिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप विल इंक्रीज विद टाइम। एट द इनिशियल स्टेज आपको लग सकता है कि नहीं नहीं, हम बहुत लिमिट रखेंगे चीज़ों को, किसी दिन बात नहीं भी हो रहा है तो चल रहा है, तो फिर वो क्या, वो रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि आई कैन कॉल यू माई गर्लफ्रेंड बट यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड इन एनी वे, प्लीज स्टे अवे, यू कैन नॉट कम क्लोजर, क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ आ सकता है। माइंड इतना डिफिकल्ट है ना कंट्रोल करना, तो इसलिए इसलिए प्लीज से नो। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मे बी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दिस इज द रीजन। नहीं, वो मैं समझ गया that it might divert our mind and it might divert us from the main purpose. But कहीं ना कहीं मतलब अगर शादी भी होती है तो मतलब ये चीज उसमें भी तो आ सकता है ना, मतलब हाँ सपोज अगर डिवोर्सेस से अगर शादी हुई, बट कहीं ना कहीं वो फैमिली को टाइम दे दे के, तो हम लोग उसमें भी एंगेज हो सकते हैं बाय हाँ चांस। डेफिनेटली। तो इसलिए मतलब
इसीलिए मतलब मेरा क्वेश्चन, इसलिए मैंने रिलेशनशिप को ही टारगेट करके, मीन्स अगर इफ समवन इज प्लानिंग, इफ समवन इज गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द फ्यूचर पर्पस कि जहाँ आगे जाके वो शादी करेंगे, तो इसलिए मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मतलब कि नो मीन्स क्यों करना है ऐसा, तो इसलिए। शादी के बाद क्या होगा ना, वो लीगल हो जाएगा, एंड बिफोर शादी इट इज इलिसिट, इट इज अवैध। मतलब ओके शादी के बाद उसको एक प्रॉपर मीनिंग मिल जाएगा। वाई यू आर टुगेदर? बिकॉज वी आर मैरिड, दैट्स इट। ओके, सो इट गिव्स द मीनिंग टू द हाँ रिलेशन। हाँ, एंड आपको पता है गृहस्थ डिवोटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रह्मचारी डिवोटी फ्रॉम माइंडसेट। दोनों का माइंडसेट सेम ही होता है, लेकिन अब क्या होता है कि बिफोर मैरिज ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना होता है, क्यों करना होता है? वाई नॉट रिलेशनशिप एट दिस एज व्हेन वी कैन हैव दैट रिलेशनशिप आफ्टर 5 years? तो अभी क्यों नहीं? दैट इज़ बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दैट स्टेज। आप अभी अगर नाम जप करेंगे, बहुत सिंसियरली चैंटिंग करेंगे, तभी तो आप गृहस्थ में आके डिस्ट्रैक्ट होने से बच पाओगे, क्योंकि आप उस लेवल तक अपने कॉन्शियसनेस को लेके जाओगे। इवन विद योर वाइफ यू विल बी हैविंग अ वेरी प्योर रिलेशनशिप। समझ रहे हो आप? जी उसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट होगी, और अगर अभी हम डिस्ट्रैक्ट हो गए while being in a relationship, even if your partner is a devotee, तो वो क्या करेगा? आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। दैट रिलेशनशिप विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल्स, एनी गोल इट कैन बी। आपका अगर आप सिंपली पढ़ाई भी करते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील होगा। नाउ इवन बीइंग इन ब्रह्मचर्य आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपके पास अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो है। बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको पढ़ना है, एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सब में भी आपको प्रॉब्लम होगी। और पता है ब्रह्मचर्य इतना स्ट्रांग बनाता है आपको, बहुत स्ट्रांग बनाता है। ब्रह्मचर्य का अगर कोई सही तरह से पालन करे ना, तो दैट पर्सन इज इम्यून फ्रॉम extreme cold temperature, extreme hot temperature, and that person is have very strength, so much strength. तो that is the power of brahmacharya, क्योंकि आप अपने पावर वही को है कि मतलब, हाँ, कि ब्रह्मचर्य का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो हम लोग, स्पेशली मुझे जानने को मिला ही जब मैं मीन्स ये सारे भागवतम क्लासेस या क्लासेस में सुनने, मतलब फॉलो करने लगा यूट्यूब के माध्यम से, या जो प्रीचर्स हैं या स्पीकर्स हैं इस्कॉन के या बाकी के, उनसे जब सुना। और हम लोग जब, स्पेशली मैं जब स्कूल्स में, तो यूजुअली ना मास्टरबेशन को बहुत ज्यादा वो किया जाता है कि ये करना चाहिए, कि इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, पोस्टेड कैंसर जो भी होता है। तो ऐसे ऐसे इस तरह का मीन्स बोल बोल के इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। तो पीपल आर मोर गेटिंग इनटू दिस सच थिंग्स एंड नॉर्मलाइजिंग सच थिंग्स। तो नाउ जब जो इसमें इंटरेस्टेड है या जो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, फिर पता चलता है कि व्हाट दे आर लूजिंग फ्रॉम देयर बॉडी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होल्डिंग अ सीमेंट। तो यही चीज है। तो ये काफी लेट से पता चला मुझे, बट वही है कि उसी को फॉलो करना होगी। ओके, तो आई हैव वन थिंग फॉर यू। ओके, लेट्स एंड द क्लास नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन स्टिल बी इन द मीटिंग। अभी ये जो लेक्चर है यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है। इफ़ द क्वेश्चंस आर डन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन एंड द सेशन। Okay, 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 okay. Thank you so much for watching. Thank you so much for being here, patiently listening to the chapter and the Bhagavatic Charcha. Hare Krishna everyone. हरे कृष्ण प्रभु जी। जी।